In this class, we will start with components of salary. Since you are doing payroll management, this is the course for payroll management, and the main function of payroll management is the processing of salary. That is why it is very important for you to know what are the various components of salary. This probably is the most important and most interesting part of payroll management. क्योंकि components of salary पढ़ने के बाद once I am done teaching you what is benefit and various other components, I'll move on to social security concept. Two social security schemes I have already taught you. What are those? Say gratuity and inside. Okay. One is employee state insurance scheme and the other one is gratuity. Let's start with the component of salary. And you are BCom fourth semester, so I expect you to know a few things and participate in the class. Okay. Class has started. No talking in the class now. No talking at all. Right now. The first point is base pay. Second point is allowances. Third point is benefits and incentives. And fourth point is rewards and recognition. Have you written? Priya and sir? Yes, ma'am. मैम रिपीट कीजिएगा. Okay. First point is base pay. Second point, allowances. Third point, benefits and incentives. Fourth point, rewards and recognition. यस मैम. Now tell me, from whatever knowledge you have of the components of salary, what is basic pay? Base pay? क्या होता है? Have you heard of this term? Basic pay? क्या होता है? बेसिक सैलरी के काम जो हो वो बेसिक पे में आता है, बेस पे में आता है, क्योंकि वो हमेशा एक ही समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता. चलो, something valuable to add. It is fixed. ये कहना चाह रहे हो? Someone else? I'll tell you now. And also What's that? great. Great pay, basic salary. ABC. That is group. ग्रेड पे हर ग्रुप का अलग होता है. जैसे आईएएस ऑफिसर का ग्रेड पे या ग्रुप ए सर्विस में जो लोग रहते हैं उनका ग्रेड पे कितना होता है? 5400 का स्केल मिलता है उनको. 400 का. बी में
में जनरली 46 का गेट पे मिलता है, ठीक है। चलो तो बताएंगे बाद में। As he said, basic pay is the fixed part or the fixed component of the salary. Okay, this is generally fixed. The other allowances are added on this basic pay to make your salary. बाकी जो allowance है वो इस basic pay पे add होती है, ये fixed part होता है और ये किसी कारण से fix रखा जाता है। Say for example, basic pay keeps on changing. जैसे DA दिया जाता है, हम DA पढ़ाएंगे अभी इसके बाद। बेसिक पे को अगर फिक्स रखा जाता है तो अलाउंसेस को डिफर किया जा सकता है। जैसे कभी कोई क्राइसिस का टाइम आया तो कुछ अलाउंसेस कंपनी कट कर देती है। अभी कोविड के समय में बहुत सारी कंपनीज ने दे हैव कट डाउन देयर एक्सपेंसेस बाय कटिंग वेरियस अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय सैलरी, बट दिस फिक्स्ड पार्ट इज जनरली left untouched. Okay. How many of you know what is CTC? Any can answer. Cost to capital. No. This is cost to company. Right now, CTC is cost to company. Cost to company. What do you mean? Say for example, ये ऑफर लेटर में लिखा रहता है आपके लिए सीटीसी कितना है, ये ऑफर लेटर में लिखा रहेगा। अगर उस ऑफर लेटर में ये लिखा है सीटीसी इज 4 लाख per annum, what can you make out from this? Okay, and also included in this. This is the total cost that the company will have to spend on you if they hire you. So if it writes on the offer letter that your CTC is 4 lakh per annum, this would mean that in hiring you, the organization will have a cost of 4 lakh per annum. आपको हायर करने में उस ऑर्गेनाइजेशन को 4 लाख प्रति साल खर्च करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर सीटीसी 10 लाख है तो मतलब उस 10 लाख उसको खर्च करना पड़ रहा है आपको हायर करने में, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, ये जनरली आपको प्राइवेट सेक्टर में पैकेजेस को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीटीसी बनाया जाता है। So everything that is written in CTC, you probably don't get it. Okay, and employers, they dupe you by making this pay package very attractive. So when you're going to negotiate for CTC, always negotiate for your net salary. What will you get in hand salary? Because थोड़ा unethical practices भी रहता है CTC में, जैसे कि gratuity का benefit भी लोग ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, gratuity का benefit भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जबकि gratuity is not deduction. This is a payment made by the employer to the employee. What is gratuity? I've taught you know. What is gratuity? After 5 years job, when the person is retired, then After 5 years, the person will retire. no, it's a compulsory for 5 years of that he gets a gratuity. बोले मैम। हाँ बोलो। मैम, gratuity is a sum of money or some amount that is paid by the employer to the employee, whatever the service rendered by him, organization, that is called gratuity. But you have to mention that. You have to mention. Ma'am, can I speak? Number of years. बोलो प्रिया। Ma'am, the person who render 5-year continuous service to any business, then they provide gratuity to. After having completed, yes, you're right. After having completed 5 years of continuous service in the organization, remember
When you say 5 years, you have to mention this word continuous service. If you joined and you worked for 2 years, and you went out for 1 year in some other company, and you came back and worked for 3 years, and then you say that I've completed 5 years, no. At a stretch, you have to complete 5 years of continuous service to the organization. The employer shall give you gratuity benefits. Okay, you people missed out the class on gratuity, that is why. Fine. तो उन चीजों को भी CTC में ऐड कर दिया जाता है पैकेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जबकि वो तो तुम्हारा राइट है, वो तो तुम्हें नहीं में मिलना है, तो उसको CTC में ऐड करने की क्या जरूरत है ना. Whatever. CTC is 4 lakh per annum. आप बताइए मंथली सैलरी कितनी होगी इसकी? Calculate. Divided by 12. This is per annum, no? And divided by 12. This will come as 33,000. Okay? 33,000. So your monthly salary will be 33,000. When we say basic salary, why are you joining? You don't need to join. I'll make your attendance in the class. There's so many people. When you say CTC is 4 lakh per annum, if you take out its monthly salary, it will come down to 33,000. Basic salary is generally 40 to 50% of your CTC. Okay, this will be 40 to 4. This is a standard thing. It's not a written rule. This depends upon the organization, the paying capacity of the organization, and the HR policy of the organization. So, standard, you can say that it is 40 to 50% of your monthly salary. CTC. CTC का ये भी CTC ही है. Per month का CTC है ये. This is 40% of 33,000. What is the figure? Tell me. Commerce के student को फटाफट बताइए. 1,33,000. 33,000 monthly salary. Basic salary 1,33,000 हो जाएगी. 30,200. Will be the basic salary. अब आपको समझ में आया CTC से सैलरी कैसे बनाते हैं? बेसिक सैलरी ये बनाने में कंपनी बहुत सोच विचार करती है कि उसका कॉम्पेंसेशन पैकेज बहुत लॉजिकली डिजाइन हो. They cannot give से मैम CTC एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ CTC. यस मैम. Okay. CTC is cost to company. Okay. CTC is cost to company. मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर लेटर में 4 लाख पर एनम लिख के देती है, इसका मतलब है कि आपको हायर करने में उस ऑर्गेनाइजेशन को 4 लाख एक साल में पैसा खर्च होता है. ठीक है. जब आप 4 लाख पर एनम कहते हैं तो मंथली सैलरी अगर निकालेंगे तो 4 को डिवाइड कर दो 12 से, 4 लाख को. ओके, इट विल कम डाउन टू 33,000. अब जनरली हम बेस पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुमको बताएं कि बेसिक पे जनरली, यू नो, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड जनरली. जनरली 40 to 50% होता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर 30% है, 40% है, तो आप 33,000 का 40% निकाल लीजिए, तब 14,000 तो आएगा. ठीक है. अप्रॉक्स 14,000 मैम ना. हाँ, अप्रॉक्स 14,000. अप्रॉक्स क्या 13,200. इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन. ओके, 13,200. अब बाकी जो अलाउंस तो मैम नेट 40% रहेगा या फिर उसमें ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, या 30 मिल जाए या 35 मिल जाए या नेट 40? बिल्कुल हो सकता है. मैंने बताया अभी आपको कि ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है ना, कि अगर वो 50% रखेगा CTC का तो एनीवे वो चेंज होगा ना मंथली.
Yes, ma'am. बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसकी पेइंग कैपेसिटी हाई रहती है वो ज्यादा रखते हैं CTC। Then when you talk about basic pay, आप थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में समझिए। ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में बता दिया गया कि CTC कैसे कैलकुलेट, कैसे क्या होता है, CTC का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी उससे कैसे वैरी करती है। Now you understand a bit about now we'll talk about बेसिक सैलरी। थोड़ा सा आप समझिए गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे कैसे क्या होता है, ताकि आप अगर रिक्रूटमेंट का पेज पढ़ रहे हैं किसी का तो आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे कि still laughing. When we talk about the basic salary, आप देखेंगे रिक्रूटमेंट पेज पे ऐसे लिखा होता है 50,000 to 1,60,000। आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जैसे MBA वगैरह का जो रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट Yes, ma'am, रहता है। जिनको हाँ जिनको E2 कैडर में लिया जाता है डायरेक्टली, MBA इन HR, MBA इन फाइनेंस या माइनिंग इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, जियोलॉजी के लिए, ठीक है, उनको जो ऑपरेशंस के लिए लिया जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। बेसिक का किस तरीके से हिसाब किताब होता है 15,000 to 1,60,000। उनकी पॉलिसी कुछ किस तरीके की होती है, जैसे आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में 50,000 दिया जाएगा बेसिक सैलरी। इस बेसिक पे बाकी अलाउंस कैलकुलेट होगा, ठीक है, इस बेसिक पे बाकी अलाउंस कैलकुलेट करके आपको सैलरी दी जाएगी। Once you complete the training period, you will be promoted to a basic salary grade of 60,000, 60,000 आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है। बाकी जितना जो अलाउंस होगा फिर वो किस पे कैलकुलेट होगा 60 पे। जब 60 तुम्हारी बेसिक सैलरी है तो बाकी अलाउंस फिर 60 पे कैलकुलेट होगा। Now even if you are not promoted in some organization sorry, depending upon the vacancies, हो सकता है कि आपका टाइम बाउंड प्रमोशन हो। जैसे जूनियर लेवल का जनरली ना टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, 3 साल कंप्लीट हो गया तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट हो गए। लेकिन जैसे आप बढ़ते जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उतनी सीट्स रहती है जितना जूनियर लेवल पे रहती है? नहीं, जनरल मैनेजर तो एक ही होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर 3-4 ही होते हैं। लेकिन जब जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात होगी तो मास रिक्रूटमेंट होता है, 200-250 लोगों को एक बैच में लिया जाता है और अलग अलग कंट्री में सर्व, अलग अलग कंट्री के जगह पे सर्व करने के लिए भेजा जाता है, पोस्टिंग आती है उनकी। तो क्या होता है फिर अगर आपका प्रमोशन नहीं भी होता है और आपकी बेसिक इतनी दी गई है, ठीक है, 50,000 ट्रेनिंग पीरियड पे थे, फिर आप 60 में पहले प्रमोशन में पहला जब आपने फ्रेश ज्वाइन किया, कंफर्म हुए आप, तब आप 60,000 पे ज्वाइन किए। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं भी होगा दूसरे लेवल पे E3 पे, तो क्या आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। फिर मान लो कि वो 60,000 64,000 हो जाता है, 64,000, बाकी अलाउंस उस पे कैलकुलेट, सैलरी बढ़ गई तो फिर वो आप इसी लेवल पे है, फिर वो 67,000 हो गया, तो फिर सारा अलाउंस उस पे कैलकुलेट। इस तरह से देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक ही लेवल पे बहुत सालों तक रिटेन किया जाए, 4-5 साल से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको तब तक रिटेन किया जा सकता है उस पोस्ट पे जब तक कि आपका
एक बार वहां पहुंच गई और उससे बढ़ गई तो फिर ये कंपल्शन है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाना होगा, क्योंकि आप एंटाइटल नहीं है कि आप उसमें उसी लेवल पे रहेंगे। समझ में आई बात? तो बेसिक इस तरीके का होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है कि बेसिक सैलरी फिक्स्ड होती है और उसके ऊपर अदर अलाउंसेस कैलकुलेट किया जाता है। ओके, समझ में आया तुम लोग को? Yes, ma'am. डीए के बारे में कितने लोग सुने? डीए के बारे में कितने लोग सुने? सबने। बताओ, बस जितना आता है उतना ही बताओ। वेरी गुड, यही होता है। और कोई? साल में 2 बार दिया नहीं जाता है, साल में 2 बार रिवाइज होता है। वो दिया तो हर महीने जाता है वो, ठीक है। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंस को हिंदी में क्या कहते हैं? महंगाई भत्ता। न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव। महंगाई भत्ता, अलाउंस को भत्ता कहते हैं। महंगाई भत्ता which is an adjustment of cost of living in your salary. This is an adjustment of cost of living in your salary. And this is a component which was introduced in the salary after World War II. Dearness allowance was introduced in the salary after World War II. This concept was brought in after World War II, and this is still a component in countries like India and Bangladesh. वहाँ भी दिया जाता है D as a component. Okay, this is a cost of living adjustment. मतलब बाहर इकोनॉमी में जिस स्पीड से महंगाई बढ़ती है उस स्पीड से सैलरी बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। उस स्पीड से सैलरी नहीं बढ़ती है, और हमेशा सैलरी बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो हर महीने महंगाई बढ़ गई, महंगाई का तो रेट आता है, गो थ्रू द फिगर्स, इन्फ्लेशन रेट इतनी है, इन्फ्लेशन रेट इतनी है, तो क्या वो हर महीने सैलरी बढ़ा सकती है गवर्नमेंट? पूरा का पूरा पे कमीशन लगता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का सैलरी बनाने के लिए। इट्स अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। तो उसी को एडजस्टमेंट करने के लिए आपके सैलरी में एज अ कंपोनेंट डीए को जोड़ा गया, डियरनेस अलाउंस। साल में 2 बार गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती है कि भाई आप 6 महीने के बाद सैलरी महंगाई कितनी हुई उस हिसाब से रिवाइज कर दिया जाए, और डीए को बढ़ा और घटा सकती है। लेकिन कभी भी महंगाई प्रैक्टिकली कम हुई है? कभी भी कम होती है? नो, दैट इज व्हाई डीए इज आल्सो नेवर डिक्रीज्ड, इट ऑलवेज गोस ऑन इंक्रीजिंग। आप देखेंगे तो जब रिविजन होता है तो या तो स्टैटिक रखा जाता है या तो फिर बढ़ाई दिया जाता है, घटाया नहीं जाता है, क्योंकि महंगाई भी कभी घटती है। जनवरी और जुलाई में अभी लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने डीए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए रिवाइज किया जुलाई में, ऐसा जुलाई एंड जनवरी, और डीए बढ़ा के 17% से 28% कर दिया। ओके, 17% टू 28%। इसको हम बेस ईयर, जब डीए को कैलकुलेट किया जाता है तो इसको बेस ईयर 2001 माना जाता है, एंड टू द बेस ईयर 2001 we give it marks 100. You don't have to go into calculation. 2001 को बेस ईयर माना जाता है, सीपीआई के हिसाब से कैलकुलेशन होता है डीए का, which is कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, डीए किसको किसको मिलता है, किसके सैलरी का कंपोनेंट होता है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स कंपोनेंट। ओके, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्योर गवर्नमेंट सेक्टर एंड
पब्लिक सेक्टर, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताइए जो आपको मालूम हो। IOCL और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इस पर BSNL ओके एंड भारत पेट्रोलियम, अब तो वो प्राइवेटाइज हो गई। ONGC, BHEL, बार, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। समझ में आई बात? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग, यानी इसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है, बट इट इज नॉट फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। लेकिन जिन लोगों का रिक्रूटमेंट यूपीएससी से होता है, जिन लोगों का रिक्रूटमेंट एसएससी से होता है, बीपीएससी से होता है, या स्टेट पीएस से होता है, स्टेट पीसीएस, ये सब क्या है? प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्योर गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट बॉडी है ये सब, तो है ना। आईएएस ऑफिसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसएससी से जितने पोस्ट रिक्रूटमेंट होते हैं वो सब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बीपीएससी से जितने पोस्ट रिक्रूट होते हैं सब बिहार गवर्नमेंट। समझ आई डिफरेंस गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, पब्लिक सेक्टर्स को, एंड ये इज आल्सो प्रोवाइडेड टू पेंशनर्स जो रिटायर हो गए हैं इन सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से रिटायर होकर के जो लोग हैं जो पेंशन लेते हैं, उनके भी कंपोनेंट में डीए रहता है, और जब डीए बढ़ेगा तो उनका भी पेंशन बढ़ के आएगा। उसका ब्रैकेट है, बहुत कैलकुलेशंस है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द ब्रॉड थिंग कि उनको भी मिलता है। वो अगर फॉरेन जाकर के भी, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, they are living in India because they were working, now they have retired, now they want to shift with their children who are living in abroad, तो वो अगर वहां जाएंगे still they will be getting DA, लेकिन अगर वो वहां जॉब करने लगेंगे तब they will not be eligible for DA, they will still be eligible for pension, not DA. Okay, this was the base part of your salary component. समझ आई बात? नेक्स्ट हम आएंगे allowances पे। Write down allowances. You want to write something about this? Short notes? Not short notes, because otherwise it will be tough for you to retain. Write down. Base salary is the financial part of the salary. मैम बेस सैलरी के बारे में। हाँ, base salary, BASE. Base salary is the financial part of the salary. It is generally fixed. It is generally fixed for companies it could be 40 to 50% of the CTC. It could be 40 to 50% of the CTC. Write the full form also. CTC is cost to company. CTC is cost to company. Next, write dearness allowance. Dearness allowance. Dearness
Dearness allowance. Dearness allowance as a part of the salary, as a component of the salary. Dearness allowance as a component of the salary was introduced after the World War II. Ma'am, you are not audible. Was introduced. Dearness allowance as a component of the salary. As a component of the salary was introduced after the World War II. Done writing? After the World War II. You missed something? Did you miss something? After the World War II, it is calculated on the basis of Consumer Price Index, All India Consumer Price Index. It is calculated on the basis of All India Consumer Price Index. All India Consumer Price Index. Okay. It is calculated on the basis of All India Consumer Price Index with the base year 2001. With the base year 2001. It is a cost of living adjustment allowance. Ma'am, after 2001. जोर से बोलो. Ma'am, after 2001. Repeat the last line. No, before that. Ma'am, with the base year 2001. It is calculated on the basis of All India Consumer Price Index. All India Consumer Price Index with the base year 2001. With the base year 2001. It is the cost of living adjustment allowance. It is the cost of living adjustment allowance to counteract inflation in the economy. To counteract inflation in the economy. Counteract. Counteract मतलब तो यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है? यानी महंगाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कंपोनेंट आपके सैलरी में डाला गया है उसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस. ओके. मैम, टू काउंटरैक्ट इन्फ्लेशन के बाद Counteract inflation. Inflation in the economy. Clear, sir? Next. Now we'll move on to the next component, which is allowances. Allowances थोड़ा बड़ा है. ठीक है. What is allowance? किसी को idea? Ma'am, extra benefit which is given to the
एक मिनट सर, एक सेकंड बोलो। Very good. Yes, sir. What were you saying? Extra benefit given to the employee by the employer other than salary. It is called allowance. This side. बोलो, तुम बोलो, रजत। Extra benefit. Extra benefit with salary. तो benefit word हम अलग से component बताए ना, तुम इसमें क्यों यूज किए फिर? हर वर्ड का अपना मतलब होता है ना। जैसे हम लास्ट क्लास में बता रहे थे, किसी जॉब की वर्थ क्या होती है, किसी पोस्ट को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये कैसे फाइंड आउट होता है? हाउ डू यू फाइंड आउट? एक जीएम को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये कैसे पता चलता है? कैसे मतलब मालूम होता है? जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन इज अ टर्म जिससे ये मालूम किया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट का वर्थ क्या है ऑर्गेनाइजेशन। Someone in the class was saying yes ma'am, by job analysis. There are so many words that start with job, and in HR you have to understand the nuances of the words. Job evaluation, job analysis, job enrichment, job enlargement. 4-5 वर्ड और हैं, ठीक है? He said it right. सही बोला। Allowances का root word क्या समझ में आता है? Allowed, something which is allowed in the organization. These are over and above the basic pay which is given in your salary. Over and above, मतलब basic pay को fixed है और allowance उसके ऊपर कैलकुलेट करके दिया जाएगा। जैसे basic pay का 20%, ये आपको लिख के नहीं दिया जाता है सैलरी में, लेकिन जब कॉम्पेंसेशन बनाया जाता है, पैकेज डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि बेसिक का कितना परसेंट आपको अलाउंस दिया जाना चाहिए, एंड देन दे स्प्लिट दैट अलाउंस इनटू वेरियस कैटेगरीज। ओके, तो अलाउंस इसने बोला कि ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी which is given, which is allowed in the organization is known as allowance. अब allowance basic पे किस टाइप की सैलरी है? मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी कैसे? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी समझ में आया ना? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, यू से नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी बोथ, यू से Why do you not have any idea? अभी तो समझाए। You say, Priya, monetary or non-monetary? Ma'am, monetary benefits. Ashutosh, मैम monetary। you say sir? मैम बोथ हो सकता है। ये सिर्फ monetary है। बेसिक सैलरी कहाँ नॉन मॉनेटरी होगी? बेसिक सैलरी आपको कोई बेनिफिट मिल रही है क्या? वो तो सीधा सीधा आपके सैलरी में लिखा हुआ आता है कि उतना पैसा मिलेगा आपको। वो कहाँ से स्कोप आया नॉन मॉनेटरी का? नो, पढ़ाते हैं, रुक जाओ, अलाउंस को पढ़ाते हैं। तुमसे बताओ, जो पढ़ा दिए उसके बारे में बताओ, वो भी क्लियर नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जब आप मॉनेटरी बोल रहे हैं, हाँ, तो आप जैसे गवर्नमेंट एक तो घर देता है रेलवे वाला, तो रेलवे वाला को घर देता है, इस पे भी आप रहते हैं तो आपको पैसा नहीं लेगा आपको, हाँ। वो आपको घर में रहने देता है। जैसे आप टॉक्सिक होते हैं तो आपको पैसा लेगा। क्या कहते हैं उसको? हाउस रेंट हाउस अलाउंस। रेंट अलाउंस। तो वही तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों, इसको तो घर देना पड़ेगा। I asked about basic pay. हम बेस पे के बारे में पूछ रहे हैं।
बेस पे पूछे ना, तो बेस पे तो रिटर्न आती है, अभी तो सैलरी सीटीसी से कैलकुलेट किए तो ये ना 40% 50% बेस पे का लेवल बताए। बेसिक ही तो मॉनेटरी है, उसी पे तो बाकी अलाउंसेस कैलकुलेट होता है ना। अलाउंस वो भी होता है कि अगर आपको कंपनी से मिल रहा है पैसा, जैसे मेडिकल अलाउंस, अगर वो मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा तो अगर आप बीमार पड़े और बाहर से आपका खर्च होगा तो that will be a cost to you, the company is saving you against that cost। ठीक है, बेस पे हमेशा मॉनेटरी होगा, फाइनेंशियल होगा, अलाउंसेस हमेशा फाइनेंशियल होगा, बेनिफिट्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होता है, और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो आपने लास्ट में लिखा वो हमेशा नॉन फाइनेंशियल होता है। यानी बेस पे इज फाइनेंशियल, अलाउंस इज फाइनेंशियल, बेनिफिट्स इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, एंड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आर नॉन फाइनेंशियल। अब समझो अलाउंस के बारे में जान के, this is allowed in the organization, this is over and above the salary which is given to you in the organization। इसको वेरिएबल भी कहा जाता है। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज किया जा सकता है, इट्स नॉट स्टैटिक, unlike basic pay which is fixed। allowances they vary with the organization, they vary with the kind of job you're doing in the organization। okay, organizations they design allowances according to the nature of job of your that you are performing in the organization। जैसे हम बाकी बेसिक अलाउंसेस के बारे में बताएंगे जो जो आप सुन चुके हैं। एचआरए सुना होगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस सुना होगा, ट्रैवल Yes, अलाउंस ma'am. सुना होगा, ये सब सुना होगा ना, Yes. मेडिकल अलाउंस सुना होगा। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल बताते हैं, तब अच्छे से ये समझ पाओगे कि अलाउंस क्यों वेरिएबल होता है। देयर इज, आप एयरपोर्ट के रास्ते से गुजरे कभी, वॉल पे पेंटिंग है, उधर एयरपोर्ट है, उस पे कोई पेंटिंग नहीं है, उस पे लोगो बना होगा। it's a converging kind of logo like this। ठीक है, इस पे लिखा होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, which is Airports Authority of India, right? Airports Authority of India is a government of India undertaking which was established in 1995। These are services provided, what do they do? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है एयरलाइंस को, जो कि इंडिगो, स्पाइसजेट, जो भी एयरलाइंस है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, उनकी लैंडिंग, उनका टेक ऑफ, ठीक है, हैंगर जिस पे प्लेन उतरता है, प्लेन का मेंटेनेंस वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारा चीज। इस ऑर्गेनाइजेशन का दो मेन विंग बताते हैं हम, वैसे बहुत सारा होता है। एक डिपार्टमेंट है सीएनएस और एक डिपार्टमेंट है एटीसी। CNS and ATC। CNS is communication, navigation, surveillance। Don't take stress on your mind. This is just for explaining. Okay? Communication, navigation, surveillance, and this is air traffic control। ये जो डिपार्टमेंट होती है, एयरपोर्ट में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन और नेविगेशन से रिलेटेड जितनी मशीन है, रडार, एक्सरे मशीन जिससे लगेज एक्सरे किया जाता है, रडार, एक्सरे, जितना डिस्प्ले बोर्ड है, छोटा बड़ा, मॉनिटर, यूपीएस, जो भी है जिसपे टाइप आने जाने का सब कुछ मेंशन किया हुआ है, सीसीटीवी कैमरास इन द एंटायर एयरपोर्ट, उसका मेंटेनेंस सीएनएस इंजीनियर्स देखते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी ATC is air traffic control। यहाँ जो इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है, ये जनरली इसी वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दिया जाता है और इलेक्ट्रिकल वालों को भी शायद दिया जाता है। इनका काम क्या होता है? पायलट से कम्युनिकेट करना। पायलट जब लैंड करेगा और टेक ऑफ करेगा तो सारा क्लियरेंस ये एटीसी देता है, जिसकी शिफ्ट होगी वो देगा। ग्राउंड क्लियरेंस जो देता है, आपने देखा होगा कई बार प्लेन घूमता रहता है, उसको लैंडिंग नहीं मिलती है, नीचे लैंड नहीं करता है, तो
वो क्यों होता है? क्योंकि वो एरिया क्लियर नहीं है, यू नॉट सपोज टू लैंड। और ये कौन कम्युनिकेट करता है? एटीसी। वेदर की का कम्युनिकेशन या कोई डिस्टरबेंस है उसका कम्युनिकेशन, समझ में आई बात? या अगर पायलट को किसी टाइप का प्रॉब्लम ऊपर हो रहा है, फ्यूल खराब हो जाना, फ्यूल खत्म हो जाना, इस टाइप का जो भी आप प्रॉब्लम सोच सकते हैं कि प्लेन उड़ गया, अब आसमान में काम सिर्फ एटीसी वालों का है, मॉनिटर करते रहना। जैसे हर प्लेन की 2 अल्टरनेट लैंडिंग होती है। पटना से जैसे गुवाहाटी अगर कोई प्लेन जाएगा तो उसकी 2 लैंडिंग स्टेशन होता है, एक गुवाहाटी और एक बीच में कोई पड़ता है कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अगर उतारना पड़ा प्लेन तो कहाँ उतारेगा? तो उस जगह के भी एटीसी और जहां से उड़ा उस जगह के भी एटीसी हमेशा बिजी रहते हैं। फॉर अ प्लेस लाइक पटना जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती हैं, इट इज स्टिल इजियर, बट फॉर अ प्लेस लाइक मुंबई, फॉर अ प्लेस लाइक दिल्ली जहां हर 2 मिनट प्लेन लैंड और टेक ऑफ करती है, 2 मिनट्स मींस 2 मिनट्स, उससे ज्यादा का गैप नहीं होता है कि वहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है 2 मिनट से भी ज्यादा, वहां 6 घंटे की शिफ्ट में हालत खराब हो जाती है लोगों की, जो लोग रहते हैं काम करने। आप समझ सकते हैं कि आपका दिमाग 2 मिनट्स के लिए भी फ्री नहीं है, और ये सीधा जान की बात है। जरा सी गलती, जान से नीचे की कोई बात ही नहीं होती है, राइट? कैन यू imagine the amount of stress that goes into performing this job of 6 hours or 7 hours? Yes, इसीलिए यहाँ इनको स्ट्रेस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है? ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया ताकि आप समझ सकें कि वेरिएबल क्या होता है। ये स्ट्रेस अलाउंस सीएनएस वालों को नहीं मिलता है, जबकि सेम रिक्रूटमेंट है, सेम पे स्केल है, दोनों का पे स्केल सेम है, सैलरी इसको भी उतनी ही मिल रही है, पर ये अलग से अलाउंस इनके जॉब की प्रोफाइल को देखते हुए दिया जाता है, क्योंकि इस जॉब पे बहुत स्ट्रेस है। और अगर इसकी कोई गलती हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट अप फ्रॉम योर सीट फॉर मोर देन 1 मिनट, ऐसा होता है। स्ट्रेस अलाउंस समझ में आया? तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ अलाउंस। इसी तरीके से बहुत सारा अलाउंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। हम लोग तो जनरल जानते हैं ना, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इसके अलावा भी बहुत सारा अलाउंस होता है। ओएनजीसी वगैरह में जो ड्रिलिंग इंजीनियर होते हैं, जो नीचे जाते हैं, जिनकी जान पे खतरा होता है, उनका अलाउंस अलग होता है। कोल माइंस में जो माइनिंग इंजीनियर नीचे जाते हैं, उनको माइनिंग अलाउंस मिलता है अलग से। जो उनके साथ सेम पोस्ट पे सेम लेवल पे रिक्रूट हुए, उनके अलावा भी आग लग गई, पानी भर गया, वही डेथ हो जाएगी। तो अलाउंस को नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से भी बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है, ताकि इट डज जस्टिस टू द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट। लास्ट क्लास में आपको हम एक्सटर्नल इक्विटी पढ़ाए थे। यस मैम। तो क्या होगा, बहुत लोगों का, शायद अभिजीत था, सिर्फ अभिजीत था इस क्लास में। पढ़ाए थे मैम। इसी तरीके से बहुत सारा अलाउंस होता है। अलाउंस के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।